سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ماں کی عمر 60 سال تھی۔ جب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی، اور تجربات شاہد ہے، اطباء کا، ڈاکٹروں کا، حکیموں کا یہ فیصلہ ہے کہ اس عمر میں یعنی 60 سال کی عمر میں کسی عورت کے لیے بچہ پیدا ہونا یہ عادتاً محال ہے، مگر یہ بھی آپ کی ایک قابل ذکر کرامت ہے کہ اس عمر میں آپ کے نورانی شکم سے ولایت کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جس کی ہدایت کی روشنی نے سارے عالم کو منور و مجلہ کر دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ محترم حضرات، تمام علماء، تمام بزرگان دین، تمام اللہ کے ولی، ان تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر آزاد ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں۔ چنانچہ جس وقت سرکار غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی آپ یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان شریف کے مہینے میں سحری سے لے کر کے افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہونے لگتی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا دودھ نوش فرمانے لگتے، اپنی ماں کا دودھ پینے لگتے۔ آپ کی یہ کرامت اس قدر مشہور تھی کہ جنان کے ہر خطے میں ہر طرف یہ شہرہ اور چرچا تھا کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں سارا دن دودھ نہیں پیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بروزہ غوث اعظم کا۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بچپن سے سبق حاصل کریں، اس لیے کہ سرکار غوث پاک نے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا اور آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے روزہ رکھا، یعنی شیر خوارگی کے زمانے میں بھی آپ نے روزہ نہ چھوڑا، اور ہم غلاموں کو، ہم عاشقوں کو یہ سبق دے دیا کہ ہمارا سچا غلام، ہمارا سچا عاشق وہی ہے جو رمضان کے مہینے کا احترام کرے، روزے کی پابندی کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آپ ذرا دیکھیں، جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بچپن کا یہ عالم ہے تو آپ کی پوری زندگی مکمل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا عالم کیا ہوگا۔ آلہ فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت بلا کو سلام۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال سے زائد ہوئی تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جاتا ہے تو ہمارے اسلاف اس بچے کو رسم بسم اللہ خوانی کے لیے ایک ماہر قاری کے پاس، ایک ماہر استاد کے پاس لے جا کر کے بسم اللہ خوانی کراتے ہیں۔ چنانچہ اسی مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آپ کو لے کر کے جیلان کے ایک مکتب میں گئے، اور مشہور روایت ہے کہ سرکار غوث پاک 4 سال کی عمر میں جب اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ نمازوں میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح سرکار غوث پاک 4 سال کی عمر میں اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھ گئے، اور جیسے ہی آپ کے استاد محترم نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار غوث پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، یہاں تک کہ سرکار غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد محترم حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو کر کے عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے بچے تم نے یہ پارے 18 کب یاد کر لیے اور ان کو کب پڑھا؟ تو سرکار غوث پاک عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میری ماں یہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، میری ماں کو 18 پارے زبانی یاد ہیں جن کی وہ اکثر تلاوت کیا کرتی ہیں، جن کو وہ اکثر پڑھا کرتی ہے۔ اے استاد محترم، جب میں اپنی ماں کے مبارک شکم میں تھا تو یہ 18 پارے مجھے وہاں سنتے سنتے یاد ہو گئے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کا مبارک بچپن۔ گویا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ پیدائشی 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے، اور جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تو 7 سال کی عمر میں آپ نے مکمل قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔
7 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान हो गए। 18 साल की उम्र तक सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिलानी के मदरसों में इल्म हासिल करते रहे, तहसील इल्म करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, अम्मी जान अगर आप इजाजत दें तो मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद चला जाऊँ, इल्म दीन हासिल करने के लिए, तहसील इल्म के लिए मैं बगदाद चला जाऊँ। तो आपकी माँ ने मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी तरक्की ये बगदाद में रहने पर मौकूफ है, लिहाजा मैं तुम्हारी जुदाई तो गवारा कर सकती हूँ, तुमसे जुदा अलग रख सकती हूँ, लेकिन इल्म दीन से जुदाई, इल्म दीन से जुदाई मैं हरगिज़ गवारा नहीं कर सकती, लिहाजा मैं तुम्हें खुशी खुशी बगदाद जाने की इजाजत देती हूँ। उसके बाद सरकार गौसे पाक की माँ ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर मेरे पास तुम्हारे वालिद मोहतरम के हिस्से के 80 दिनार मौजूद हैं, 40 दिनार तुम्हारे भाई के हैं और 40 दिनार तुम्हारे हैं। उसके बाद वो 40 दिनार सरकार गौसे पाक की माँ ने आपकी गुडरी के बगल में सिल दिए, आपकी सदरी में सिल दिया और सिलने के बाद आपको नसीहत किया, बेटा अब्दुल कादिर चाहे कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत में, मगर तुम कभी झूठ ना बोलना, हर हाल में सच बोलना। उसके बाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी माँ मुझे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक तशरीफ लाई और तशरीफ लाने के बाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाजत देती हूँ और वही तुम्हारा हाफिज निगहबान है। उसके बाद सरकार गौसे पाक के चेहरे को हसरत और मोहब्बत भरी नजरों से देखा और देखने के बाद आपकी माँ ने फरमाया, हादा वजहुल ला अराहु इला यौमिल क़ियामा, हादा वजहुल ला अराहु इला यौमिल क़ियामा। फरमाती है ये वो चेहरा है जिसे अब क़यामत के दिन तक मैं देख न सकूंगी। आप जरा देखें, हमें सरकार गौसे पाक की वालिदा से, उनकी माँ से इबरत हासिल करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि उनकी निगाह में कुरान की तालीम, दीन का इल्म कितना अहम था, कितना जरूरी था कि अपने लगते जिगर, अपने नूरे नजर को अपने से जुदा किया और इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ रवाना फरमा दिया। अल्लाह ताला हमें भी अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है, अभी मेरे बाद हजरत मौलाना शकील अहमद साहब, इनका भी बयान आपको समाप्त करना है, इसलिए बस ये आखिरी बात समाप्त कर लें और इंशाअल्लाह मैं अपने गुज़र खत्म करता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 18 साल की उम्र में आपने अपनी माँ से इजाजत लेकर के तहसील इल्म के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए आपने जिलान से बगदाद शरीफ का सफर फरमाया, जो तकरीबन 400 मील का सफर है और इसी सफर में डाकुओं का मामला भी पेश आया। जैसे ही आपका काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो डाकुओं ने आपके काफिले पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद तमाम डाकू आपके काफिले वालों के मालो असबाब को लूटने लगे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 18 साल की उम्र है, आप एक तरफ खड़े होकर के सारा मंजर अपनी निगाहों से देख रहे हैं, इतने में एक डाकू आपके पास आता है और आने के बाद पूछता है कि ऐ बच्चे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो चूंकि सरकार गौसे पाक ने अपनी माँ से यह अहद किया था कि मैं किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए सरकार गौसे पाक ने कहा कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू आपकी बात को मजाक समझता है और वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा डाकू आया, उसने भी आपसे वही सवाल किया कि बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। तुरंत ये दूसरा डाकू भी आपकी बात को मजाक समझ करके वापस चला गया। जब ये दोनों डाकू जाने के बाद अपने सरदार के पास पहुंचते हैं और सरदार से सारी सूरत हाल बयान करते हैं कि एक बच्चा है जो इस तरह की बातें कर रहा है कि मेरे पास 40 दिनार है, हालांकि बज़ाहिर उसके पास कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बार बार कहता है कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं के सरदार ने कहा उस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। चुनांचे पीरे पीरा मीरे पीरा शाहगीरा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डाकुओं के सरदार के पास लाया गया। डाकुओं के सरदार ने कहा ऐ साहिबजादे
शहजादे सच बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। सरदार ने कहा वो 40 दिनार कहाँ है? आपने फरमाया वो 40 दिनार मेरी इस गुदड़ी में सिले हुए हैं, मेरी इस सदरी में सिले हुए हैं। सरदार ने हुक्म दिया इस गुदड़ी को चाक किया जाए, इसे उधेड़ा जाए। तुरंत डाकुओं ने आपकी सदरी को चाक किया, उधेड़ा तो क्या देखा, वाकई उसमें से 40 दिनार निकल पड़े। तुरंत सरकार को से पाक की सदाकत और सच्चाई को देख करके तमाम डाकू हैरत इस सजा में मुब्तला हो गए। डाकुओं के सरदार ने कहा ऐ नौजवान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग रहसन हैं, हम लोग डाकू हैं, हम लोगों के मालो असबाब को जबरन लूट लिया करते हैं। तुम्हारे पास तो ये दिनार अच्छी तरह पोशीदा थे, महफूज थे, लेकिन तुमने इसे क्यों बता दिया और क्यों इसे छुपाया नहीं? तो आपने फरमाया क्या मैं झूठ बोलता? तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। सरदार ने कहा क्या नौजवान क्यों सच बता दिया? तुम झूठ भी तो बोल सकते थे। तो सरकार को से पाक फरमाते हैं बात ये है कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे ये जो पैमान लिया था कि अब्दुल कादिर कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत आए, मगर तुम कभी झूठ ना बोलना, हर हाल में सच बोलना। तो ऐ डाकुओं के सरदार, क्या मैं तुम लोगों से डर करके और 40 दिनार के लिए अपनी माँ से किए हुए अहद पैमान को तोड़ दो, अपनी प्यारी माँ की नसीहत को भूल जाओ और अपनी प्यारी माँ को नाराज कर दो? ऐ सरदार सुन लो, दीदार तो दे सकता हो मगर माँ की बात नहीं दे सकता हो, खुद तो लुट सकता हो मगर माँ की नसीहत को नहीं लुटा सकता। माँ का हुक्म था हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। अब आराम कैसे सुने, फजल रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया, एक अजूबा जमाने को दिखला दिया। आज भी लोग कहते हैं सदमन हवा, गौसे आजम इमाम तुका बंदुका, जलवे शान कुदरत बिना खुसरा। सरकार की इस प्यारी और सच्ची बात का डाकुओं के सरदार पर ऐसा असर पड़ा कि वो रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि हाय अफसोस, तुम अपनी माँ से किए हुए अहद पैमान को नहीं तोड़ सकते और हम न जाने कितनी मुद्दत से, कितने अरसे से अल्लाह ताला का अहद पैमान तोड़ रहे हैं। ये कहते हुए डाकुओं का सरदार आपके कदमों पर गिर पड़ता है और सिद्ध की गिरद से तौबा करके अपने गुनाहों से माफी मांग लेता है। जब तमाम डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते हुए देखा तो डाकुओं ने कहा कि ऐ सरदार, जब तुम डाका सरी में हमारे सरदार थे, जब तुम लूट मार में हमारे सरदार थे, तो अब गुनाहों से तौबा करने में भी तुम हमारे सरदार हो। तुरंत तमाम डाकुओं ने भी अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और तौबा करने के बाद काफिले वालों का तमाम लूटा हुआ मालो असबाब वापस कर दिया। और रिवायतों में ये बात मिलती है, किताब में तारीख में ये बात मिलती है, वो तमाम डाकू तौबा करने के बाद अल्लाह की इबादत करने लगे, इबादत और रियादत में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि अपने दौर के तमाम सालिहीन लोगों में नहायत मुत्तकी और परहेजगार बन गए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर फरमाया करते थे हुम अव्वलु मन ताब अला यदी, फरमाते हैं ये सबसे पहला गिरोह था जिन्होंने मेरे हाथ पर सच्ची तौबा की। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक बचपन से सबक हासिल करें और सच का दामन किसी हाल में भी ना छोड़ें और हर हाल में सच बोलें, इसलिए कि सच बोलना और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारना ये हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुबारक तरीका रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सच्चा आशिक बनाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज की बात आई तो जरा गौसे पाक की एक इबादत भी आप समाप्त करते हुए चलें। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से मैंने किताब में ये बात पढ़ी है कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं 25 साल तक इराक के जंगलों में कष्ट करता रहा, उस वक्त न लोगों को मैं पहचानता था न लोग मुझे पहचानते थे, यहाँ तक कि मैंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सरकार मुझसे पाक फरमाते हैं 15 साल तो मैंने इस तरह गुजारे हैं कि नमाज इशा के बाद सुबह तक, नमाज इशा के बाद मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू करता और सुबह तक एक खत्म कुरान मजीद मुकम्मल कर लेता। ये सरकार वैसे पाक की इबादत और इबादत का हाल था। आज हम आशिकों का, हम गुलामों का हाल ये है कि हम में से शायद कोई हो जो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता हो, मगर सरकार वैसे पाक पे फरमाते हैं कि मैंने 15
साल इस तरह गुजारे हैं कि नमाज इशा के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू करता और सुबह होने से पहले पहले मैं खत्म कुरान मुकम्मल कर लेता। और इसी तरह आप फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और हम आशिकों का, हम गुलामों का हाल ये है कि हमसे फजर वक्त नमाज भी नहीं पढ़ जाती। हम अपने आप को सच्चा पक्का आशिके गौसे पाक कहते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ न्याज दिला देना, सरकार गौसे पाक की महफिल सजा देना यही कामयाबी है, यही उनको राजी करने का तरीका है। याद रखें, आप अगर अल्लाह वालों को चाहते हैं कि हमसे राजी है तो हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारे। सरकार गौसे पाक ने किस तरह इबादतें की है, नमाजों की पाबंदी की है। लिहाजा हमें आपको चाहिए कि हम और आप भी नमाजों की पाबंदी करें, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।